राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav said this not once, not twice, but thrice when asked a specific question on his party's position in poll-bound Maharashtra, where the Samajwadi Party seems to be running out of patience with allies in the Mahavikas Aghadi. Now, especially the Congress party is on the Samajwadi Party's alleged target. Now, Akhilesh's lecture on sacrifice comes at a time when there's an ongoing tussle between his party and the MVA over seat sharing. Only yesterday, Akhilesh Yadav, state unit chief Abu Azmi publicly expressed his frustration with the Aghadi for dilly-dallying on the Samajwadi Party's long-pending demand of supporting 5 SP candidates who the party has already fielded. Now, Abu Azmi said that if the MVA continues delaying, then the Samajwadi Party will have no other option but to execute their plan B. Now, as per sources, what is this plan B? There are sources in the Samajwadi Party who are indicating that the party could field about 20 to 25 candidates in Maharashtra if they decide to go solo and if they are not accommodated by the MVA. Abu Azmi also recently met Sharad Pawar to express his grievances with the MVA. Now, with Akhilesh Yadav sending out such a loaded political message on sacrifice, it seems like cracks are only widening between allies of this bloc. सर, महाराष्ट्र में पार्टी को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, आपको लगता है? कितनी ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर सर लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। क्या 25 सीटों पर फैसला होगा? नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। So after the Congress party's forced surrender in the Uttar Pradesh by-polls, is the Congress doing tit-for-tat politics with the Samajwadi Party as being alleged by the BJP? Now, this is happening in the state of Maharashtra, where the Samajwadi Party seems to be very frustrated with its allies. And is it only the Samajwadi Party where this fight seems to be escalating now, or is there more sense of confusion with other allies too? Because as per sources, and this is the latest breaking news information that's now coming in, the Congress is mulling a friendly fight against Uddhav Thackeray in the seats of Versova and Baikula. Now, Mumbai Congress unit goes on to feel that Uddhav Thackeray announced candidates in these two seats without considering the Congress party's interests. Now, they also feel that the Shiv Sena UBT acted in a similar manner in the Lok Sabha polls when it comes to the seat of Sangli. Before we get you more updates on what's happening within alliance partners in the state of Maharashtra, watch how MVA allies are sparring over seat sharing. मेरा कहना है कि जो भी करना है जल्दी कर दीजिए। पिछले 2 टर्म का मुझे जो मुझे हुआ है, एहसास हुआ है, मैंने देखा है जिस तरह से लास्ट टाइम आप लोगों ने हमारे को युति से अलग किया, वो अब नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी तैयारी पूरी है। नहीं सीट मिलेगी तो 100% सेकंड प्लान होगा, सीट मिल जाएगी तो कोई प्लान नहीं है। यूपी आल्सो हैज बीन रेस्पेक्टेड ना, हियर वी आर गिविंग देम सम सीट्स। डेफिनेटली समाजवादी पार्टी इज अ पार्ट ऑफ महाविकास आघाड़ी। एक है कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलना चाहिए, ये हमारी मंशा है। हर पार्टी को यही लगता है। नहीं, कांग्रेस को कम से कम 110 सीट तो कम से कम लड़ना चाहिए। अतुल is joining us live. अतुल, समाजवादी पार्टी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह है ही नहीं। ये मैसेज कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि बाईपोल में अभी कांग्रेस को लिटरली सरेंडर करना पड़ा। एंड राइट नाउ महाराष्ट्र में उनका जो प्लान भी है, जिसके बारे में अबू आजमी भी बोल रहे थे, विल द समाजवादी पार्टी, क्या वो प्लान भी एग्जीक्यूट कर लेगा, जहां पे सोर्सेस के मुताबिक 20 से 25 इंडिपेंडेंस को खड़ा कर देगी समाजवादी पार्टी?
जी देखिए, अबू आजमी से भी अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी। उन्होंने ट्वीट करके अपनी भी स्थिति क्लियर कर दी है कि वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में जो सेकुलर वोट्स हैं उसमें बंटवारा हो। महायुति के साथ, महा विकास आघाड़ी के साथ अभी भी बने रहना चाहते हैं। जो आखिरी डिसीजन है इनके आला नेताओं को लेना है, यानी तीनों पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको लेना है। लेकिन वो भी उसी चीज को मेंशन कर रहे हैं कि हमारे सुप्रीम जो नेता हैं उन्होंने पहले ही कह दिया है राजनीति में त्याग की जो है जगह नहीं है। और यही वजह है कि इस समय फिलहाल वो गोवंडी इलाका जहां पर से वो मानखुर्द शिवाजी नगर से कल अपना नामांकन अबू आजमी भरने वाले हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। अभी फिलहाल मीडिया से वो बात नहीं करना चाहते क्योंकि वेट एंड वॉच की कंडीशन में अभी भी वो देख रहे हैं। लेकिन ये इतना माना जा रहा है कि कल तक शायद ये छवि जो स्थिति है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के क्लोज, उनका ये कहना है कि जैसे ही नामांकन अबू आजमी कल भर देंगे उसके बाद पार्टी का जो क्लियर स्टैंड है उनके साइड से और अखिलेश यादव से बात करने के बाद हो सकता है 20 से 25 जो उम्मीदवार इनकी तरफ से खड़े करने जाने के लिए तैयारी चल रही है, प्लान बी जिसे वो अपना कह रहे हैं, उसके लिए वो तैयार हैं और शायद उन नामों का ऐलान भी हो जाएगा। क्योंकि अभी सबसे जो ताजा अपडेट है शरद पवार की जो एनसीपी एसपी है शरद चंद्र पवार, उनकी तरफ से ही अणुशक्ति नगर करके एक सीट है मुंबई के जो कुर्ला इलाके में आती है, वहां पर फहाद अहमद करके जो कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया है वो समाजवादी पार्टी के लिए अब तक पिछले 5-6 दिनों से लगातार प्रचार कर रहे थे और एज अ कैंडिडेट अपने आप को समाजवादी पार्टी का बता रहे थे। लेकिन टिकट जो है उन्हें एनसीपी एसपी की तरफ से मिल गई है, शरद चंद्र पवार की तरफ से। और ऐसे में अब ये भी बातें उठ रही हैं, क्या जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को पार्टी की तरफ से अबू आजमी या अखिलेश यादव खड़ा करना चाह रहे थे, उनको अलग अलग जो तीनों पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उद्धव गुट हो या शरद चंद्र पवार की जो एनसीपी हो, उनकी तरफ से खड़ा किया जा रहा है। क्या इस तरीके की बातें चल रही है, इस तरीके की भी कोशिश हो रही है? नहीं तो समाजवादी पार्टी और कितना रुकेगी? बिकॉज दे गेव एक अल्टीमेटम ऑफ सॉर्ट्स दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो हम तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, हमें आप क्लैरिटी दीजिए कि हमारा जो डिमांड है कि हमने जो 5 कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, क्या एमवीए उनको सपोर्ट करेगी, हाँ या ना में आप जवाब दे दीजिए। बहुत दिनों से ये डिमांड रहा है। अतुल बने रहिए हमारे साथ। We'll tell our viewers more about that ultimatum and the deadline that the SP has set for the alliance partners, especially the Congress party. But it's the BJP that is mocking what they are calling these cracks within the INDIA bloc. The BJP alleges that a divided INDIA seems to be now on the verge of a split. इंडी गठबंधन जिसमें चाहे एनसीपी हो, उद्धव साहब हो, एसपी हो या कांग्रेस हो, ये सिर्फ व सिर्फ अपने बच्चों को राजनीति में स्थापित करने के लिए, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी काली माया के साम्राज्य को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये भानुमति का कुंभ है, आज इसमें दरारें आ चुकी हैं, जल्द ही ये टूटने वाला है। इंडी अलायंस ऑफिशियली खत्म हो गया है। अखिलेश यादव जी के स्टेटमेंट से, बयान से ये स्पष्ट हो चुका है कि वो अब इंडी अलायंस में फॉर्मली नहीं है। ये घमंडिया अलायंस में हर नेता एक दूसरे की राजनीतिक जमीन काटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस पार्टी से बदला अखिलेश यादव ने लिया, अखिलेश यादव से बदला कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में लिया। ऐसे घमंडिया गठबंधन में जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को काट रही है, जनता कभी भी ऐसे घमंडिया गठबंधन का स्वागत नहीं कर सकती, उसका समर्थन नहीं कर सकती। So what will the Congress party do at a time when the Samajwadi party seems to be putting it on the mat? Will it accommodate the Samajwadi party in the state of Maharashtra, or will it run the risk of antagonizing a very important ally? Because like Akhilesh, even his party leaders are giving, there are other party leaders also giving the Congress lecture on Bada Dil and Balidan. Here's how the SP, the Congress and Shiv Sena UBT are reacting to the latest developments. किसी भी गठबंधन को मजबूती से चलाने के लिए, कोएलिशन धर्म को इज्जत देने के लिए बलिदान नहीं, बड़ा दिल दिखाने की जरूरत होती है, जो समाजवादी पार्टी ने हमेशा दिखाया है। 2017 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें हमने कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें दी थी, बड़ा दिल दिखाया था।
2019 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें हमने बीएसपी को आधे से ज्यादा सीटें दी थी, बड़ा दिल दिखाया था। तो श्री अखिलेश यादव ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। जहां तक बात रही महाराष्ट्र की, हम महाराष्ट्र में से वही सीटें लड़ने जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी ऐसे भी जीतती। समाजवादी पार्टी के अलावा वो सीटें कोई और जीत नहीं सकता है। इंडिया गठबंधन केवल चुनावी मशीन नहीं है। कौन कितने उम्मीदवार लड़ाएगा इसका भी फार्मूला नहीं है। वो विचारधारा की लड़ाई में अहम शस्त्र है। आपने देखा होगा यूपी में कांग्रेस ने 9 में से कोई भी सीट नहीं लड़ाने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि भाजपा को एडवांटेज न मिले। महाराष्ट्र में अगर यही समाजवादी पार्टी और महाविकास आघाड़ी इसमें अगर कुछ भी थोड़ा सा है तो उसे एडजस्ट किया जाएगा। Samajwadi Party is part of India Alliance, rather one of the main components of India Alliance. We have made a very flexible approach as far as seat sharing is concerned. You can see that we have cooperated them in Uttar Pradesh that our priority is to protect the constitution and protect the reservation and defeat communal forces. And likewise it should be there in Maharashtra. महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई। तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को है।